Why are you so and impressed with Pakistan mediating? Well, I'm if sorry, at all it they are hurts me. mediating, I'm no, sorry, why it are you hurts so? me. Why are you so? निंदा करने में क्या आपको परेशानी हो रही है? डरते हैं, यही तो कह रहा हूं, कायर हैं, डरपोक हैं, यही तो कह रहे हैं बार बार। हमारी दिक्कत क्या है? और आज इसीलिए we are at a stage where Pakistan is negotiating and mediating between Israel, America, why are you so and impressed with Pakistan mediating? Well, I'm if sorry, at all it they are hurts me. mediating, I'm no, sorry, why it are you hurts so? me. Why are you so impressed with Pakistan I'm not. trying It to hurts mediate? me. Why I'm does it hurt depressed. you? I'm not impressed. I'm sorry. You are getting confused. हाँ. मुझे तो परेशानी है इस बात की। आप सरकार को हम ताने दे इतना रहे हैं। बड़ा देश आप सरकार को ताने दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे साहब? सरकार हम होते सरकार में नहीं होता ये, तभी तो ताने दे रहे हैं। किसको दें हम ताने? अब हमें बताइए। हम श्रेया ढोंडियाल को थोड़ी ताने देंगे? दे दीजिए दो नहीं दे सकते ना, क्यों? आप सरकार की हैं? नहीं, फिलहाल नहीं। थैंक यू। नहीं है ना, बीजेपी की नहीं है ना, तो आपको थोड़ी ताने देंगे, तो उन्हीं को देंगे। आपको तो पता है नहीं, तो आप क्यों बोल रहे हैं ये बात? मुझे नो, बट इट्स अ सीरियस क्वेश्चन. Why is the Well, I'm also very serious. It's very depressing to see India not even being in the reckoning in any mediation exercise which is happening. But why should we be in the reckoning? Why should we not? But why should we? Why should we is not? it our war? Because is it Pakistan's war? No, but Pakistan has a long history with Iran. We have a longer history with Iran, civilizational history with Iran. What are you talking about? And the external affairs What are you minister, talking about? And the external affairs minister yesterday has said we are no one's dalal. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे, दलाल थे तब। तो दलाल जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं हम दलाल नहीं है। ये क्या मतलब है? यूं तो उछल उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में। This was answered. Our first question. Now let me ask these questions right here. Your viewers have a right to know what our questions are. Our question: why did the Prime Minister have to go running to Israel when everybody in the world knew that there is a war coming? Why do you have to stand there? I stand with Israel. Arey bhai, why do you have to stand with Israel? For that nakli medal that they gave him. Believe me, that medal did not exist. And after the Prime Minister comes back, that medal will not exist. This was a made for Modi medal. आप वो medal लेने चले गए साहब इजराइल, क्यों गए? Who asked you to go there? But why not? Why should you take a stand? No, but should prime ministers not travel to different countries on This diplomatic visits? This prime minister has an amazing track record. He went to Japan. Within 24 hours, the Japanese prime minister had to resign. He goes to Israel. Within 48 hours, there is a war. Illegal war. अरे तो उनकी गलती थोड़ी ना है। गलती ये है साहब कि आप सीधे खड़े रहिए। आप मत झुकिए ईरान की तरफ। हम नहीं कह रहे आप ईरान की तरफ झुकिए। सीधे तो खड़े रहिए। नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ तो खड़े रहिए, कुछ सिद्धांतों पर तो खड़े रहिए. दैट्स व्हाट वी हैव बीन आस्किंग प्राइम मिनिस्टर टू डू. दैट्स व्हाट इंडिया हैज ऑलवेज डन. But our principle and our siddhant is non-alignment, which the Prime Minister has displayed. I stand with Israel is not non-alignment, madam. That was before the war. That was just 48 hours before the war. But did he know the war was breaking out? Okay, now, yes, good question. Ayatollah Khamenei gets assassinated. A non-aligned country, a Prime Minister of a non-aligned country, should at least condemn that killing, should at least condole that killing. Did you hear the Prime Minister condole or condemn this assassination of a head of state? What non-alignment are you talking about? How many countries around the world condemned the assassination of Ayatollah Khamenei? We are talking about India, which is non-aligned according to you. And a lot of countries did condemn, by the way. Even Pakistan condemned. Acha. So the government, see, I'm not a spokesperson for the government. Well, I'm sure you're not. But this is what the government's point of view is when the opposition raises this question. They simply say, when the Iranian embassy initiated the entire condolence book, भाई हम तो पहले दिन पहुंच गए साइन करने. अरे साहब, मलेशिया में बस एक्सीडेंट होता है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं. इंतजार नहीं करते मलेशिया की एम्बेसी कोई बुक खोलेगी. This is the head of the state, for God's sake, being assassinated by America and Israel in an illegal war. First of all, the war is illegal. You do not condemn the war. Second, 168 school-going girls were killed by Israel and Iran. No condemnation. हिम्मत नहीं है. Epstein, याद रखिए, there is something called Epstein. ये डरते हैं. लेकिन आप हर चीज में एप्स्टीन ले आते हैं. हम नहीं लाते. एप्स्टीन हर की चीज में आ जाता है. नहीं, देखिए, पार्लियामेंट अगर आप पहुंचे हैं तो दो तीन चीजें हैं जो ऑपोजिशन लेके खड़ी हो जाती है. एक बोलती है प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज. आप प्लीज नहीं, 1 मिनट, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो आप बार बार एप्स्टीन ऑपोजिशन करता रहता है, especially in regard with the Prime Minister of this country, on what basis, sir? On the basis of a couple of emails between two people. Forget those emails. Between two people. I am not talking about. I will not talk about emails or females. Okay. Let's talk about the conduct of the Prime Minister. Operation Sindoor. Ceasefire कहां से आया भाई घोषणा? अमेरिका से. डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं साहब सीजफायर हो गया. एक सेकंड बाद में बोला. पहले sorry. The announcement came from Donald Trump, not from my Prime Minister. Then Donald Trump 100 times has said jets were falling and I ensured that there was a ceasefire. Who are you to ensure a ceasefire, bhai? I have a Prime Minister of my own. People have elected Narendra Modi, not Donald Trump. कॉम्प्रोमाइज है या नहीं बताइए. चुप है. एक हिम्मत नहीं होती बोलने की, साहब डोनाल्ड ट्रंप आप झूठ बोल रहे हो. क्यों नहीं बोलते आप? हिम्मत क्यों नहीं है?
अभी सुनिए ना, अभी तो शुरू हुई है बात, आगे भी तो बोलने दीजिए, आगे भी तो बोलने दीजिए। आप डोनाल्ड ट्रम्प हैड नथिंग टू डू। ना, एक बार नहीं बोलने की, एक बार नहीं बोला डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लेकर कि ये गलत बोल रहे हैं, एक बार नहीं बोला। आप दिखा दीजिए, लाइए अभी दिखाइए। I'll wait, no. Mr. Khera, the government. बोलिए ना, मोबाइल दिखाइए ना। सर मेरे पास मेरा मोबाइल है। मेरा लीजिए। नहीं, आप रखिए अपना मोबाइल। Thank you very much. My point is that the government has said there has been no third-party mediation between India and Pakistan. Why should we not believe? Why did the announcement come from Donald Trump? Why should we not believe? Why was Donald Trump the first person to inform India that there is a ceasefire between India and Pakistan? Tell me. अच्छा, अब आइए ट्रेड डील पे। आपने तो एक भी रोक दिया मुझे, दूसरे पे आइए। ये ट्रेड डील साइन नहीं हुई है भाई, लेकिन शर्तें हम मान रहे हैं। अरे जब कोई साइन ही नहीं हुई, why do you have to obey? आप हाथ बांध के खड़े हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने। मलेशिया तक ने हिम्मत दिखाई कि साहब हम नहीं मानते इस ट्रेड डील को, उन्होंने साइन कर दी थी बाय द वे। हमारी साइन नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लियरली वेंट अगेंस्ट दीज टैरिफ्स। वी डिड नॉट हैव द courage to wait for the Supreme Court order. 18 days before the Supreme Court of USA did what it did, we went running. कि साहब आप जो कहेंगे हमें मंजूर है। आप कहेंगे रशिया से तेल नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। आप कहेंगे ईरान से नहीं खरीदना, नहीं खरीदेंगे। ये क्या है? कॉम्प्रोमाइज नहीं है। Mr. Khera, as the opposition, it's a very convenient position to be in because you can say exactly what is on your mind, right? Because you're in the opposition. Can a government really do it? I'm asking you this question seriously. Well, we have been in government also. Yes. We've been in government for 54 years and 7 months. But we and 15 days. And we live in a difficult... Prime Minister is not just compromised. I'm sorry, he's a coward. ये कायर हैं, ये डरते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, ये चीन को क्लीन चिट दे देते हैं, ये चीन से डरते हैं। अब हमें नहीं मालूम ये एप्स्टीन से डरते हैं या नहीं, आप बताइए। भाई मुझे नहीं पता। आपने कहा ईमेल्स का जिक्र नहीं करना क्योंकि हरदीपुरी आने वाले होंगे, बैठे हो तो हमें नहीं। मैंने ये नहीं कहा ईमेल्स का जिक्र नहीं करना। मैंने कहा 2017 की जो ईमेल्स हैं जिनको लेके एप्स्टीन। अरे साहब उन ईमेल्स पे चलिए, अब आपने ईमेल्स बोला है। नहीं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोज एंड डांसेस एंड सिंग्स इन इजराइल टू मेक डोनाल्ड ट्रंप हैप्पी। ये लिखा या नहीं लिखा बताइए मुझे। अरे कुछ भी मैं लिख दूं कि आई एम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, आप मेरी बात मान लेंगे। क्या बात है? वो ईमेल्स FBI, वो ईमेल्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिलीज किए। हाँ, लेकिन those emails are between two people who could claim what they want to claim. चलिए फिर आइए। No, I am very happy you have challenged me on this. सकता था आपकी, शर्म आनी चाहिए साहब इस देश को कि ऐसा प्रधानमंत्री आ गया ये तो जो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड। ये तो क्लेम्स है, प्रूफ कहां? क्लेम्स कैसे? अरे साहब हम तो आपको 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, टाइम्स नाउ ने नहीं चलाई। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने सबसे लड़ाई करी हम लोग। रिपीट, all that we expect the prime minister of this glorious country is please stand straight. लेट मत जाइए इजराइल के सामने, झुक मत जाइए अमेरिका के सामने। रुकिए साहब, क्योंकि हम जिस परंपरा से हैं वो 1971 की परंपरा है। हम आंखों में आंखें। आप मुझे बताइए चीन को क्लीन चिट देने की जरूरत क्या थी? ये कितनी सीडीज हैं प्राइम मिनिस्टर की, किस किस देश के पास हैं साहब? एक बार लिस्ट दे दीजिए हमें, ताकि हमें भी मालूम पड़े आप इनसे डरते हो। चीन से अब स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बहुत रोज कुछ ट्वीट कर रहे हैं। मधु ईश्वर हैं, कोई रोज ट्वीट कर रही हैं। हमें ये तो बीजेपी के अंदर की आवाज है साहब। चीन को क्लीन जवाब नहीं मिले, क्यों दौड़े गए इजराइल? क्या जरूरत थी कहने की आई स्टैंड विद इजराइल? क्यों नहीं आपने निंदा की एक गैर कानूनी युद्ध की जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ा? क्यों नहीं आपने शोक व्यक्त किया आयतुल्लाह खमेनी की हत्या पर? क्यों नहीं 168 स्कूल जाती हुई बच्चियों की हत्या पर की आपने निंदा की? ये हमारे सवाल थे, जवाब दें। क्यों ट्रेड डील में दौड़े चले गए? मिस्टर खेरा, ये सारे सवाल की अनुमति मांगते हैं कि क्या मैं रूस से तेल खरीद लूं, क्या मैं ईरान से तेल खरीद लूं? क्या ये जवाब दिया इन्होंने? अरे मैं क्यों जवाब दूंगी? अब मेरी तरफ इशारा ना करिए। मैं नहीं हूं देश की प्रधानमंत्री। लेकिन ये जो शिप आई थी ईरान की, हमारी मेहमान थी, निहत्थे थे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में निहत्थी शिप्स ही अलाउड थी। उनको मार दिया, सेलर्स मर गए। ये तो मैं भूल गया, अभी याद दिलाया। गलत हुआ तो बोला प्रधानमंत्री ने गलत हुआ। बताइए, ये मेजर्ड स्टेट्समैन की स्पीच में कहीं सुना आपने? ये मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, आपने ये तो सुना? बुलाइए ना टाइम्स नाउ के समिट में, पूछिए ना ये सब सवाल है। सिद्धांतों पर चलने वाला देश रहा है, यही हमारी शिकायत है इनसे कि एक ऐतिहासिक रिश्ता ईरान से आपका है, उस रिश्ते की तो कम से कम इज्जत करिए। हम ये नहीं कह रहे इजराइल से दुश्मनी कीजिए, उनसे भी रिश्ता रखिए, हमने भी रखे थे। बाय द वे, इजराइल गॉट रिकॉग्नाइज्ड under the Congress government. Correct. So let's not forget that. But एक सिद्धांत पर चलने वाला देश है, उस सिद्धांत को मत कॉम्प्रोमाइज। मिस्टर खेरा, the opposition has heavily refused. हमने नहीं किया, और जब हमसे रेफ्यूज मांगा गया हमने दिया ईरान को। एक न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन ओशन में, हमारे पड़ोस में, हमारे आंगन में आकर खड़ा है, हमें पता नहीं था। इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। That's the whole point of a nuclear powered submarine. किसी को पता नहीं कहां है, किसी को पता नहीं चलता कि वो कहां है। हमारी इंटेल कहां है? अमेरिका भी इस एक्सरसाइज में इनवाइटेड था। लास्ट मिनट पे अमेरिका ने बोला हम नहीं आएंगे। हमारे खेरा, यू बीन एन एक्स जर्नलिस्ट, और एक बात बड़ी अच्छी है, मैंने 2-3 बार आपसे सवाल राहुल गांधी पे पूछने की कोशिश किया ना, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया राहुल गांधी। एक बार लिया, शुरू में कहां सवाल पूछा? नहीं, ये बिल्कुल गलत। आपने कहा राहुल गांधी कल वहां नहीं थे ऑल पार्टी मीटिंग में, मैंने कहा प्रधानमंत्री भी नहीं थे। नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास 100 सवाल थे, पहुंच जाते वहां।
1 hour 40 minutes की अरे जब जवाब देने वाला खुद नदारद है तो सवाल पूछने वाला क्या जाएगा? तो वहां पे पेट्रोलियम मिनिस्टर था। अरे प्रधानमंत्री थे इस सरकार में ये वन मैन फाइनेंस ये 1.5 लोगों की सरकार है। पहले 3 की थी, बेचारे दोवल साहब अब ज्यादा नहीं हस्तक्षेप करते। अब ये 1.5 लोगों की सरकार है, आधे अमित शाह और पूरे मोदी। अब ये पेट्रोलियम मिनिस्टर बेचारा क्या है, वो दिन भर आपको बोलता है सोर्सेज कह रहे हैं साहब। अभी सरकार आप चला रहे हो, सोर्सेज चला रहे हैं, सोर्सेज कह रहे हैं कोई कमी नहीं है एलपीजी की। शाम को आते साहब लंबी लंबी लाइन लग रही है एलपीजी के बाद। तो ये सोर्सेज वाले लोगों से हमें नहीं सवाल पूछने, हमें सवाल पूछने हैं नरेंद्र मोदी से, और वो गायब है भाई। जवाब तो अच्छा सुनिए, आजकल प्रचार करने भी नहीं जा रहे, सुना कोई स्टेट उनको बुला ही नहीं रहा। आसाम कह रहा है मत आना, हार जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको। कहां गए? पंचायत चुनाव में पहुंच जाते थे साहब गलफ लगा के कपड़ों में। न बंगाल जा रहे हैं, न आसाम गए, न केरला वाले बुला रहे हैं। ये हो क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ? जाएंगे, कब जाएंगे? वो मना कर रहे हैं, आपको मालूम नहीं है, बोल रहे हैं मत भेजिए इनको, हार जाएंगे। नहीं, आपके पास सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बीजेपी की कैसे रखनी पड़ती है साहब। अब वहां के लोग खुद बताते हैं फोन कर करके। अच्छा, कैन आई आस्क यू, just switching, to get Why some do you want to perspective. change the topic? I'm not changing the topic. I want to get some perspective. We just have 9 more minutes, so I just thought we'll get some more perspective. But this has been a good chat. I like that. आज की वीडियो अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।